শিলচরের একাংশ বেসরকারি হাসপাতালে নবজাতক শিশু বিক্রির সিন্ডিকেট। কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশু বিক্রি করা হয় এই সকল হাসপাতালে। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে শিলচর কালীবাড়ি চরে রবিদাস নামে এক ব্যক্তির নিজের মেয়েকে গর্ভবতী করার ঘটনার পর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্মুখে এসেছে। অভিযোগ মতে শিলচরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে কন্যা সন্তানটি জন্মের পর নবজাতক শিশুটিকে এক সন্তানহীন দম্পতির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। শিলচর রাঙ্গিরখাড়ি সিটি মেটারনিটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছে ডিজায়ার ফর লাইফ নামের এক সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তারা। নাবালিকার জন্ম দেওয়া নবজাতক শিশুটিকে সন্তানহীন দম্পতির হাতে বিক্রি করার পর নার্সিংহোমটির জঘন্য কাণ্ড প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু তাই নয়, শিশুটিকে বিক্রি করার পর ঘটনা প্রকাশ্যে আসলে দত্তক নেওয়া দম্পতিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চাপ সৃষ্টি করে যাতে আসল নথিপত্র সহ শিশুটিকে হাসপাতালে ফিরিয়ে দেয়। তারপর পুলিশের হস্তক্ষেপে শিশুটিকে দম্পতির কাছ থেকে উদ্ধার করে শিলচর নিবেদিতা নারী সংস্থার হোম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংগঠনের কর্মকর্তারা নার্সিংহোমে গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনার অনুসন্ধান করার পর নার্সিংহোমের কুকাণ্ডের কথা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে তুলে ধরেন সংস্থার শিলচর শাখার দায়িত্বে থাকা গীতা পাণ্ডে নামের এক মহিলা। এই সম্পূর্ণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন গীতা পাণ্ডে। সঙ্গে নার্সিংহোমটি বন্ধ করে দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তিনি। শিলচর থেকে অজিত দাসের রিপোর্ট, নববার্তা টুডে। আইরাম দাঁড়াও খেয়ে আছে হসপিটালে কিতার লেগে ডাকে দাঁড়া আমার বাচ্চা লই আবার লাগি আগে কালকে কাগজটা আনলাম, আমার অরিজিনাল কাগজটা তারা লুকাই নিল। এটা এখানে দেখতো, এটা তো আমি দেখিয়াই তো নিলাম। আমি তো রবিরেও চিনি না, সবিরেও চিনি না। হসপিটাল থেকে দেওয়া হইলো আমারে, বাচ্চাটা নেই না আপনার অ্যাডপশন। আমি বিল দিলাম 40-50,000 টাকা, 70,000 টাকা বিল দিলাম। এখন আবার যদি আমার বাচ্চাটা নিয়ে যায় কি আমি কিতা করবো? খাও অসীম দায় মানে করছেন, কিন্তু কালকে তো আমি অসীম দার কথায় আমি সব ডকুমেন্টস দিলাম, অরিজিনাল কপি নিয়ে তাই না আমরা ধমকি মারুন কিটা। হ্যাঁ আপনারা বেশি মাতুন না, যাবে বলছে আমার বাচ্চার কাগজ আপনি লাগে এখানে। হ্যাঁ কিটা করতাম তে নিতাম না নে। আর এরপরে এটা যখন শোনা যায় এগুলো রবির বাচ্চা, আগে শুনলাম এটা কিতা পালের বাচ্চা কৌছেন, তখন আমি কিতা করতাম? কাগজটা তো কালকে আমার অরিজিনাল কপি তারা চুরি করে নিল, আমার চুরি করে দমকাইলো আমরা রে। আমার বোনকে দমকাই হসপিটাল থেকে বার করে দে। আমি তো পেশেন্টেও চিনি না। কৌছেন তোমরা আমার পেশেন্ট, আমি তো অ্যাডপশন নিতাম আসলাম, তুমি তো আমার ডাকি আনিয়া কইলা ও বাচ্চা মানুষের লোক মাতিলাও, প্রস্তাবতে যত লাগবো দিলাই ভাই তুমি বাচ্চাটা নেও গিয়া। আমি তো চিনি না। কৌছেন তুমি জানো না, ঠিক আছে আমিও তো জানি না। যে আমি পেশেন্টে চিনি নি, যে আমার পার্সোনাল কোনো চিনা জানা আছে নি? কৌছেন আমি তো আজকে আমি একটা ভদ্র ফ্যামিলির বউ, আমি আসছি কি তার লাগে যে একটা বাচ্চা লাগে, আমি একটা মা হইতাম, আমার একটা সন্তান লাগে, আমি সন্তানরে স্যার তারা কিতাবে দেওয়া অরুণ দেবনাথ স্যার আমার লোক দেখাই করেন না। কালকে সন্দীপ দারা কিতা অসীম দা আমার বোনকে দমকাই আমারে ফোন করছেন কিতা কোন জানো নি? হ্যাঁ ফোন রাখেন আপনি ফাইজলামি না। আমি অত টাকা দিলাম, আমি অত কষ্ট করলাম, বাচ্চাটারে আগলাইয়া রাখলাম, আমার বাচ্চার ট্রিটমেন্ট করতে পারলাম না 2 দিন থেকে। আমার বাচ্চার সার্টিফিকেট তারা রাখি দিয়েছেন অরিজিনাল কপি। এসকেটায় স্যারে ফোন কর, তখন তারারে আমি কেমনে বিশ্বাস করতাম? তারারে তো আমি বিশ্বাস করতাম না। আমি এখন যদি আমি তারারে তো আইমো, আমি ঠিক আছে বাচ্চা নিয়ে আমি আইমো, আমি অন্য মানুষ নিয়ে আইমো সঙ্গে। তারারে খুব আমি আইমো আমার সঙ্গে। আমার কালকে তো আর মতো আইসলাম, আজকে আমার যত বিলটা দিচ্ছে, এই বিলটা এখান থেকে দেওয়া তো, এই হসপিটালে দেওয়া তো বিল। ঠিক আছে সমাজ আপনার বাচ্চা জন্ম দিতে নি জানেন আপনারা যদি তাই ফোন করিয়া থাকে, ঠিক আছে যদি আপনারা ফোন করে থাকে আপনার টাইমে ফোন করছেন, আপনারা কইতে বাচ্চা দেওয়ার কথা আপনি ফোন করছেন, ঠিক আছে। এখন বিলটা তো হ্যাঁ পাইতো, যে বিলটা এখানে দিছে বিলটা তো পাইতো, ঠিক আছে। এখানে कालीबाड़ी चोर का जो घटना है, न्यूज़ के माध्यम में आप सबको पता ही है कि वहाँ पर एक बाप बेटी का जो गलत संबंध होने की वजह से एक बच्चा पैदा हुआ है। ये लेके बहुत बड़ा हंगामा वहाँ पर हुआ है।
जो बच्चा हॉस्पिटल से 2 नंबरी करके दिया गया था किसी को, उस बच्चे की एडॉप्ट किए हुए माँ, जिसका नाम है सुमा देवरॉय, हॉस्पिटल का नाम है सिटी मैटरनिटी नर्सिंग होम, ये हॉस्पिटल का नाम है जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है। तो जब हमारे पास आया तो हमने तुरंत उनको एसपी के पास लेकर गए। एसपी के पास जाने के बाद आधा घंटा एसपी बाहर गया है, बैठना पड़ेगा, हम लोग बैठे, लेकिन 2 घंटा बाद तो एडिशनल एसपी के पास जब हम लोगों ने गए तो जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो बच्चा आपके पास है इसमें आप चोरी केस में फंस सकते हो। तब जाकर हमने उनको हॉस्पिटल का फाइल दिखाया, हमारे पास फाइल था ये डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बिल क्लियर किया उन्होंने। अगर वो बच्चा सुमा देवरॉय के नाम का ही ये डॉक्यूमेंट्स है, ये बिल पेमेंट सब सुमा देवरॉय का है, अगर ये बच्चा सुमा देवरॉय का है तो फिर पुलिस क्यों निवेदिता में ले जाकर बच्चा दिया? बहुत गहरा सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को ही ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर से भी पूछना पड़ेगा, एसपी से भी पूछना पड़ेगा। अगर ये बच्चा सुमा देवरॉय का है तो ये क्यों गया निवेदिता में? और अगर सुमा देवरॉय का बच्चा नहीं है तो ये बच्चा किसका है? हॉस्पिटल क्यों सुमा देवरॉय को दिया? सवाल ये है। हमारा जानकारी में ये है, सुमा देवरॉय ने हमें ये बताया, रोबी दास जब बच्चा लिया तो रोबी दास वहाँ पर ही था, लेकिन हॉस्पिटल ने सुमा दास को कॉल किया, सुमा देवरॉय को। हॉस्पिटल से रीता नाम का एक महिला ने कॉल किया था और कॉल करने के बाद उनको बोला कि तुम अगर सारा बिल क्लियर करोगे, यहाँ पर बिल दोगे, बिल का पेमेंट करोगे तभी तुमको बच्चा दिया जाएगा। उन्होंने बिल पेमेंट किया, लेकिन जब न्यूज़ वायरल होने लगा तो रीता ने कॉल करके बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है, पहले बच्चा का डॉक्यूमेंट्स भी जो ओरिजिनल माँ था उसका डॉक्यूमेंट्स भी सुमा देवरॉय के पास था, वो नहीं गया, बच्चा छोटा था तो उसका पति को भेजा डॉक्यूमेंट्स देके। डॉक्यूमेंट्स असीम नाम का जो हॉस्पिटल में जॉब करता है उन्होंने रख लिया और उनको धमकी दिया कि नहीं मिलेगा, जाओ। और दूसरा दिन जब हम लोगों ने ये मांग रखा था कि बच्चा और उसका माँ को हम लोगों को मिलना चाहिए, कहाँ है बच्चा, क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था कि उस सुमा देवरॉय के पास बच्चा है, ये मांग हमने न्यूज़ में रखा था। तो इसीलिए बच्चा को दूसरा दिन कॉल करके हॉस्पिटल कम से कम 20 बार उनको कॉल किया बच्चा लेकर जाने के लिए, लेकिन सुमा देवरॉय घबरा गया। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ले लिया उस तरीके से बच्चा को भी ले लेगा और बच्चा मार डालेगा, इसलिए वो तुरंत कोर्ट में गया। तो मैंने कहा, आने के बाद उन्होंने कहा मैडम हॉस्पिटल से बहुत कॉल आ रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कॉल रिसीव करो, कॉल रिसीव करने में क्या जाता है? तो उन्होंने कॉल रिसीव किया, से हॉस्पिटल से कॉल आया बच्चे लेकर आओ। सुमा देवरॉय ने कहा कि हॉस्पिटल में अभी कौन है? बोलो कोई नहीं, आप आओ। बोले देखो कल तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स छीन लिया, अगर आज मैं जाऊंगी तो आप बच्चा छीन लोगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? 70,000 रुपये पेमेंट की। बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे 2 नंबरी है। एक हॉस्पिटल कैसे किसी की बच्चा किसी को दे सकता है? विदाउट बाप का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? बाप का परमिशन के बगैर बच्चा पैदा नहीं होता है। कैसे हुआ? जबकि सरकार बोलता है कहीं पे डीएनसी नहीं होना चाहिए, कहीं पर बाप की सिग्नेचर के बगैर बच्चे के डिलीवरी नहीं होना चाहिए, फिर ये सब कैसे हो रहा है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल से बच्चा कैसे सुमा देवरॉय के पास गया और एसपी ऑफिस से बच्चा कैसे निवेदिता में पहुंचा? बच्चा किसका था और किसका डॉक्यूमेंट है ये है, और बिल किसने पेमेंट किया, बच्चा किसने पैदा किया? ये सारे सवाल का जवाब आप लोग लीजिए एसपी ऑफिस, सदर थाना से और हॉस्पिटल से। वो लड़की प्रेग्नेंट होकर बच्चा हो गया, उसका उम्र भी 18 साल नहीं हुआ है, 17 साल है, 17 साल प्लस। जब वो प्रेग्नेंट हुआ 16 साल का ही था। तो ये पॉक्सो केस में भी जाता है। और एक बाप होकर बेटी को इस तरीके की गंदगी किया, ये समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और इसको अगर सज़ा नहीं मिलेगा तो बेटी बाप के साथ जो विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा। और अगर बेटी के साथ, पापा के साथ बेटी बाहर है तो मम्मी भी टेंशन करेगा कि मेरी बेटी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। इसके लिए इनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि कोई भी गलत अगर नियत होगा अपनी बच्चे, अपनी बहन, अपनी बेटी के प्रति, तो ये नियत नहीं करेगा। ये एकमात्र इनको अगर आजीवन कारादंड हो, फांसी तो नहीं होता है अभी, आजीवन कारादंड का मांग रखते हैं। और साथ में ये मांग रखते हैं हम पूरे कोर्ट और समाज और प्रशासन से कि रोबी दास का नाम का जो व्यक्ति है उनको बेल नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान का कोई भी एडवोकेट बेल मत कराइए प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और दूसरी बात यह है, सिर्फ इसमें रोबी दास शामिल नहीं है, इसमें उसका छोटा भाई, और उसका छोटा भाई जगह जगह पैसा दे रहा है। कौन पैसा बांट रहा है? हॉस्पिटल बांट रहा है या फिर पुलिस प्रशासन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? इसका भी पता आप लोगों को लगाना है, क्योंकि पैसा का लोभ हर तरफ जा रहा है, पैसा देने की मांग जा रहा है। मेरे पास भी ऐसा कोई कॉल आया था,
लोग आया था, लेकिन हमने नहीं माना कि इस सब मैटरों में और किसी भी मैटर में हम पैसा नहीं लेते। हम संगठन में जो काम करते हैं, हमारा जो प्रोसेस है, जिस तरीके से फीस लेने का, वो सब लेकर हम लोग लीगल काम करते हैं, अनलीगल कुछ काम नहीं करते। हमें पैसा नहीं चाहिए।